लेट्स सी यूपीएससी ऐसे पेपर। तो ये डिस्कस करेंगे कि कैसा पेपर था ये, हाउ डिफिकल्ट और इजी was this exam as compared to the last few years. So you can read the topics that were given first of all in this essay paper जो 15th of September को हुआ है. So the first topic, I'll read all these topics, then we'll discuss a little bit about every topic here. So thinking is like a game. It does not begin unless there is an opposite team. So for better understanding हिंदी में भी पढ़ लेते हैं. चिंतन एक तरह का खेल है. ये तब तक प्रारंभ नहीं होता जब तक एक विरोधी पक्ष ना हो. Right? So this is the section A. If you guys don't know, section A, section B दोनों में से एक टॉपिक आपको सिलेक्ट करना होता है जिसमें 1000 से 1200 शब्दों का आपको एक ऐसे लिखना होता है. Second is visionary decision making happens at the intersection of intuition and logic. Right? You will also tell me कि आपको easy लग रहे हैं ये टॉपिक्स या डिफिकल्ट लग रहे हैं. Right? Let's see what is your opinion about this. तो अच्छी डिसीजन मेकिंग, दूरदर्शी निर्णय तभी लिए जाते हैं जब अंतर्ज्ञान और तर्क का परस्पर मेल होता है. राइट? देन नॉट ऑल हु वंडर आर लॉस्ट. सभी भटकने वाले गुम नहीं होते. एवरी ईयर देयर इज अ कोट. राइट? तो उस पर हमेशा ऐसे लिखने को मिल जाता है. देन इंस्पिरेशन फॉर क्रिएटिविटी स्प्रिंग्स फ्रॉम द एफर्ट टू लुक फॉर द मैजिकल इन द मंडेन. रचनात्मकता की प्रेरणा लौकिकता में चमत्कार ढूंढने के प्रयास से उपजती है. तो अगर आपको चुनना होता, इफ यू वर गिविंग दिस एग्जाम, तो सेक्शन ए में से व्हाट वुड हैव बीन योर टॉपिक? क्विकली लेट्स सी आपका क्या टॉपिक होता. जल्दी से आंसर करेंगे, एक दूसरे को फॉलो नहीं करेंगे, सो दैट वी एटलीस्ट अंडरस्टैंड अ बेसिक ट्रेंड कि ज्यादातर बच्चे, ज्यादातर एस्पिरेंट्स जो मेंस बैठे लिख रहे होते हैं वो कौन से एसेज को सिलेक्ट करते हैं. एंड दिस हैपेंस, दिस इज अ ट्रेंड, दिस हैपेंस एवरी टाइम कि कुछ ऐसे एसेज होते हैं जो बहुत सारे बच्चे लिखते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको कोई भी टच नहीं करता. राइट? यू आर सेइंग थर्ड ऐसे, फर्स्ट ऐसे, सेकंड ऐसे, ओके, 1 और 4, so everybody is writing everything, right? All right. Thinking is like a game. Okay. All right. So this was the section A. Section B भी देख लेते हैं. 1000 से 1200 शब्द लिखे हुए हैं. So around 1000 words आपको लिखने चाहिए. Section B. Girls are weighed down by restrictions. Boys with demands. Two equally harmful disciplines. लड़कियां बंदिशों के तथा लड़के अपेक्षा के बोझ तले दबे हुए होते हैं. दोनों ही समान रूप से हानिकारक व्यवस्थाएं हैं. सिक्स्थ ऐसे, गणित ज्ञान का संगीत है. मैथमेटिक्स इज द म्यूजिक ऑफ रीजन. जिस समाज में अधिक न्याय होता है उस समाज को दान की कम आवश्यकता होती है. A society that has more justice is a society that needs less charity. शिक्षा वह है जो विद्यालय में सीखी गई बातों को भूल जाने के बाद भी शेष रह जाती है. Education is what remains after one has forgotten what one has learned in the school. So which essay? यहाँ पे कौन सा लिखोगे आप? 6th और 8th? Preference to 8th. Okay. 6th is mathematics is the music of reason. All right. 8th is education is what remains after one has. 5th, all right, girls are weighed down by restrictions, boys with demands. सबसे ज्यादा लिखे जाने वाला ऐसे, बिल्कुल सही बात है. So the first thing in UPSC exam is selection of the topic. Obviously, if you write any topic which is not being written by a lot of people, that is a good thing, slightly good thing. But अगर आप different होने के चक्कर में बहुत बुरा ऐसे लिख देते हो तो ये तो बहुत ही बुरी बात है. Are you getting my point? So you should have content. 1000 शब्द जो है काफी ज्यादा होते हैं. Front and back 5 to 6 pages, 1000 to 1200 words. Right? So that is what you are supposed to write. It's not easy unless until you have content. Now, for instance, if I may ask, if you were to write 6th essay,
तो क्या लिखते हो उसमें? What you would have written? And it is impossible for any single individual to be good in every topic. ये हो ही नहीं सकता. As you can see, कितनी varied, कितनी different choices हैं. Sometimes people have philosophical bent of mind, sometimes people don't. And sometimes you cannot even figure out कि topic क्या है. What are they trying to ask? So in essay, there is no such thing. Right? Now see, thinking is like a game. It does not begin unless there is an opposite team. Now if you were to write, क्या दिमाग में आता है? First thoughts क्या हैं? What are the first thoughts that come to your mind? Let's discuss that. Thinking is like a game. It does not begin unless there is an opposite team. अगर आपको ये लिखना होता तो क्या आपके दिमाग में आता? So they're calling something opposite team. आपको इसके ऊपर 1200 शब्द लिखने हैं. You will have to create a very varied variety of thoughts, interpretations of situations in which there is something which is the opposite team. We can also, say that when UPSC is the opposite team, any goal, any target is the opposite team. We can give very simple, real life examples of sports की teams, वो तो सब देंगे. Right? Because आप अगर इसको select कर लोगे, it is going to become a never-ending journey. Right? One needs some resistance in the thinking that one possesses. All right. So interpretations बताओ अपनी, ताकि हम ये फैक्ट एस्टैब्लिश कर सकें कि ऐसे जो ऐसे होते हैं इसमें कोई भी एक सिंगल सही आंसर हो ही नहीं सकता. इट इज इम्पॉसिबल फॉर ऑल द ह्यूमन बीइंग्स टू थिंक अलाइक. नॉट पॉसिबल. राइट? सो थिंकिंग इज लाइक अ गेम. व्हाट कम्स टू योर माइंड? There is an opposite team. We can say that, ये कहा जाता है that human beings, many of them, they perform very good under pressure. So when there is someone opposing you, that sometimes creates a motivation for you. Right? That can be one perspective. अब ये फर्स्ट थॉट्स की हम बात कर रहे हैं. वी आर नॉट स्ट्रक्चरिंग द एसे एज ऑफ नाउ. अगर हम इसे चुन ले तो स्ट्रक्चर कैसे करेंगे? कुछ एग्जांपल्स, कुछ एनेक्डोट्स ऐसे के अंदर बहुत फायदेमंद रह सकते हैं. कोई कहानियां, राइट? लाइक ट्रेडिशनल स्टोरी ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य बीइंग इंसल्टेड बाय द राजा, एंड उसके बाद चाणक्य नीति, विच वाज व्हाट? इट वाज थिंकिंग. इट वाज ऑल थिंकिंग. सोच थी, एक विचार था. चाणक्य नीति, चाणक्य ने जो भी अपनी शिक्षा दी, जो भी सिखाया, when Chandragupta Maurya faced some opposition that led to him establishing the Maurya dynasty. Right? Can we give a good starting like this to the essay? Yes or no? Nothing comes to your mind. आप सब तो जो भी करेंगे, nobody, giving any ideas. हाँ, कंपटीशन मेक्स अ पर्सन मोर एफिशिएंट. ये एक बात तो वेरी सिंपल इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस थिंग. बट वी कैन नॉट फिल 1000 वर्ड्स विद सच थिंग्स. तो हमें कुछ एनेक्डोट्स डालने पड़ेंगे. एक एनेक्डोट, सेकंड एनेक्डोट. तो कुछ कहानियां हिस्ट्री से, इंडियन हिस्ट्री से, ग्लोबल हिस्ट्री से हमें डालनी पड़ेगी. राइट? एंड लॉजिक मत ढूंढना यहां पर. अगर मैं आपको कहूं कि when the apple fell and that led to the discovery of gravity, and if I try to interpret and weave my words in a certain way जिसमें मैं एप्पल के गिरने को भी एक ऑपोजिट थॉट बोल दूं, डोंट फाइंड लॉजिक. इफ यू स्टार्ट फाइंडिंग लॉजिक, फिर तो हो गया, फिर नहीं लिखा जाएगा ऐसे. राइट? बहुत लंबी डिस्कशन अभी नहीं करेंगे. यू पीपल आर गोइंग टू राइट एसेज. आप जो भी इसको सिलेक्ट करोगे उसके ऊपर ऐसे लिखोगे. वी विल डिस्कस दैट इन द क्लास. ठीक है जी? सो सेट डाउन एंड पॉन्डर ओवर दीज थिंग्स. ऑलराइट. सो ऑल दोस्त जिनको सेकंड टॉपिक लिखना था, अब बता दो. ये तो बड़ा इजियर टॉपिक है. दिस इज वेरी इजी. लाइक अगेन दिस इज सब्जेक्टिव. अब मेरे लिए जो इजी होगा आपके लिए नहीं होगा, है ना? सो दैट्स फाइन. बट आई थिंक दिस इज वेरी, हर दिन हमारे सामने ये चीज होती है कि आप सिर्फ इंट्यूशन से या सिर्फ लॉजिक से फैसले नहीं ले सकते. The extremity of choosing logic, it has a dead end, right? Like
इफ आई से दैट विजनरी डिसीजन मेकिंग अगर लेनी है और सिर्फ हम लॉजिक के ऊपर जाएं तो कई बार फैक्ट्स अवेलेबल नहीं होते हैं हमारे सामने, तो हमें किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? अपनी गट फीलिंग का, अपनी वाइब का, इजंट इट? एवरी डिसीजन, वेदर इट इज अबाउट योर करियर, it is about your partner, it is about which business you should start, which job you should take or not take. It cannot be 100% logic, it can never be 100% logic. ये तो हो गए फर्स्ट थॉट्स। आपके दिमाग में क्या आए हैं? अगर आया है कुछ तो बताओ। राइट, गुड हिस्टोरिकल एग्जांपल्स, पृथ्वीराज चौहान, बिल्कुल सही है, अच्छी चीज है। और एक तो विजनरी डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं। अब फर्स्ट थॉट्स मैंने बताया, इफ यू हैव एनी फर्स्ट थॉट्स तो यू कैन ऑल्सो शेयर। विजनरी डिसीजन मेकिंग में अब जब ऐसे लिखना है, विल हैव टू अगेन गो बैक टू हिस्ट्री बिकॉज इट क्रिएट्स अ वेरी गुड बैकग्राउंड, इंट्रोडक्शन अच्छी बन जाती है। आप कोई कोट भी डाल सकते हो, लेकिन इसमें क्या कोट ढूंढोगे? यू कैन नॉट प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर एसेज लाइक दिस, यू कैन नॉट हैव कोट्स लाइक दिस। अब यहां पे एक और जो बड़ा प्रोमिनेंट थॉट दैट कम्स टू माय माइंड इज व्हेन देयर इज अ डिबेट अबाउट ट्रेडिशन। जो चीज एक व्यक्ति के लिए ट्रेडिशन है, दूसरे व्यक्ति के लिए सुपरस्टिशन है। इज दैट राइट? इफ वी स्टार्ट थिंकिंग एवरीथिंग विद लॉजिक, तो इंडिया का सारा कल्चर ट्रेडिशन ही खत्म हो जाए। Is that right or not? So sometimes even believing God is also intuition. You feel that you have this intuition, you have this gut feeling that there is some superpower that is holding your hand, guiding you. अगर वहां पे भी लॉजिक लगा दें तो फिर तो हो गया, right? So for good leaders, you can bring in tradition, you can bring in leadership, you can bring in एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेटर्स कैसे कई बार फैसले लेते हैं तो हमेशा लॉजिक से नहीं लिए जा सकते होते। हमारे फाउंडिंग फादर्स ने कई बार फैसले लिए तो हमेशा लॉजिक से नहीं लिए। आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लेनी है, अगर नहीं पढ़ी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ लेनी है, वहां से कुछ एग्जांपल्स आएंगी, यू कैन यूज दैट। यू विल रीड गवर्नेंस, हाउ इन सर्टेन प्लेसेस यू कैन नॉट हैव ऑल द फैक्ट्स, राइट? यू विल रीड एथिक्स, एथिकल सिचुएशंस बहुत सारी करोगे, आपके दिमाग में तब तक बहुत सारी एग्जांपल्स होंगी दैट एवरी टाइम लॉजिक is not workable, right? So you can put in different perspectives, like I said, administration, governance, personal life, leadership. As an administrator, founding fathers of the country, politicians, right? Like logic says, as a politician you should think of next elections. Intuition of good politicians will say, think of the next generation. Right? Faith. So the whole logic of religion and faith, it will be defeated, and that is serving some purpose at least for a lot of human beings in the society. Example of Abraham Lincoln going to civil war within his own country can be very nice example. बहुत अच्छी, वही मैं बता रहा हूं, जब आप different subjects पढ़ लेते हो। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो बहुत सारे फैसले लिए कि पाकिस्तान हैज बिकम अ मुस्लिम कंट्री, व्हाट शुड वी डू? For some people, the logic said, become a Hindu country now, right? But intuition said that we need to rise above all these things, communalism, and establish a secular state, no matter how difficult it is going to be. तो आप constitutionalism की example ले आते हो. If you have seen how to write a good essay class, I think which is available on YouTube as well. So we talk of different subjects. हम याद करते हैं कि history, ancient history से मेरे को कोई example आ रही है, medieval से आ रही है, अकबर की एग्जांपल्स ले सकते हैं हम, राइट? लॉजिक सेड कि आप अपने धर्म का पालन करो, मौलवियों को सुनो, काजियों को सुनो। अकबर की इंट्यूशन ने क्या बोला कि नहीं, दिस इज नॉट राइट, होगा लिखा हुआ किताब के अंदर, लेकिन मेरे को सही नहीं लग रहा दैट मैं बाकी लोगों के साथ, धर्मों के साथ डिस्क्रिमिनेट करूं। आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। My intuition says that Rajputs are very good, we should get married, and हम दोनों मिलके इस कंट्री को बड़ी स्टेबिलिटी के साथ एक पीसफुल कंट्री बना सकते हैं, अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन दे सकते हैं। He did that, right? So हर ऐसे में अगर आप बैठ के ब्रेनस्टॉर्म करना स्टार्ट कर दो, इट विल नेवर एंड, बट आपका जो फाउंडेशन बनेगा दैट विल बी डिफरेंट सब्जेक्ट्स, आप ही के डिफरेंट सब्जेक्ट्स, उसमें आपने जो जो सीखा होगा
That will help you. Are you getting my point? Are you getting the perspective or not? Contemporary issues, हाँ, you can use that. वो examples आप use कर सकते हो, बहुत अच्छी चीज है, right? So that is what the thing is, and I have not given even a 10 minutes thinking to any topic before coming here, because these things are very random. Creative writing is about creativity, है ना? वो कहीं भी चली जाएगी, लेकिन प्रोवाइडेड दिमाग के अंदर थोड़ा सा कंटेंट हो. वो कैसे आएगा? आपका सारा सिलेबस पूरा हो जाएगा. You'll read a lot of newspapers, right? Good content, when it is in your head, it will lead to reproduction of something good. So don't worry. अभी अगर आपको ये एसेज बहुत स्कैरी लग रहे हैं, हालांकि ये तो बहुत इजी है, इसमें तो आपको 1200 भी, इससे भी ज्यादा शब्द मिल जाएंगे अगर आप बैठ के सोचने लग जाओ. और इट्स नॉट ऑल हु वंडर आर लॉस्ट. ये कोट तो आपने इंस्टाग्राम पे पढ़ लिया होगा बहुत बार. मोटिवेशनल कोट्स हर साल ऐसे में आते हैं, तो ये आपके लिए तो बहुत जरूरी है. आप इस चीज को भली भांति समझते हो. यूपीएससी, पीपीएससी, एचपीएससी की तैयारियां करने वाले एस्पिरेंट्स, या कुछ भी लाइफ के अंदर जिन्होंने चूज किया दैट वी आर नॉट गोइंग टू हैव अ सिंपल कॉमन बोरिंग लाइफ इन विच वी कैन एटलीस्ट वी कैन अर्न एनफ टू ईट. जिन्होंने कुछ एम्बिशन रखी, वो सभी निकल गए. कहां निकल गए? उन्होंने किनारा छोड़ दिया. दे स्टार्टेड एंटरिंग ओशंस टू फाइंड पर्ल्स, मेटाफोरिकली स्पीकिंग. So the boat is very safe at the harbor. पोर्ट पे खड़ी हुई बोट तो बड़ी सेफ होती है, लेकिन that is not the purpose of the boat. Another motivational quote which we can use here, right? So ऐसी शेरो शायरी आपने सुनी होगी, similar thoughts, कि असल में तो वो lost हैं जो कभी निकले ही नहीं घर से मंजिलों की तरफ, right? So that is what the basic idea is. First thoughts जो आते हैं इस ऐसे को लेकर, नॉट ऑल हु वंडर आर लॉस्ट. अब अगेन इसमें इतनी कहानियां दे दो, बड़ी बड़ी बातें कर दो, इंडिया की सक्सेस स्टोरी बता दो, राइट? दैट इंडिया के 1950s, 60s, 70s, 80s, 90s क्या थे? हमारी हिंदू ग्रोथ रेट थी, राइट? पॉवर्टी, ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले खाना ना होना, फूड इनसिक्योरिटी, एनर्जी इनसिक्योरिटी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, सो मेनी प्रॉब्लम्स वी वर फेसिंग. बट हमारे लीडर्स जो थे, they were having this confidence that we are not lost, we are wandering, we are in the direction towards our destination, right? Examples of महात्मा बुद्ध, महावीर जैन, गुरु नानक, बिल्कुल बहुत अच्छी चीज है ये. तो अगर आम आदमी की तरह बात करें तो बड़ी बड़ी बातें करनी है, लॉफ्टी थिंग्स, लॉफ्टी आइडियाज, नेशनलिज्म, हिस्ट्री में ऐसा महान व्यक्ति हो गया, अलेक्जेंडर की बात कर दो कि वो भी निकला हुआ था अपने देश से सारी दुनिया जीतने के लिए, और आधी दुनिया जीत ली उसने. दोज हु आर सर्चिंग आउट ऑफ द बॉक्स, राइट, वर्किंग फॉर सोसाइटी, आर ऑलवेज नॉट लॉस्ट एज दे हैवंट रीच्ड द डेस्टिनेशन. बिल्कुल सही बात. द बेस्ट पार्ट इज जर्नी. दैट इज व्हाट द बेसिक जिस्ट एंड आइडिया ऑफ दिस आर्टिकल इज, राइट? मोहनदास करमचंद गांधी, बिल्कुल सही बात है. स्ट्रगलिंग फॉर चेंज और रिफॉर्म, बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट हुए हैं ऐसे अच्छे, लाइक कैलाश सत्यार्थी जिनको नोबेल प्राइज मिला है. उन्होंने अपना सारा करियर वगैरह सब कुछ त्याग दिया फॉर दिस एनजीओ दैट इज स्टार्टेड, बचपन बचाओ आंदोलन, और बच्चों को बचाना स्टार्ट कर दिया. अक्सर क्या होता है, ऐसे लोगों को सोसाइटी ऐसा बोलती है दैट यू आर लॉस्ट because you don't reach your destination quick enough as compared to the general society. So it becomes very abnormal कि ये क्या हो गया. The reformers, see, you are giving me ideas now. The reformers, राजा राम मोहन रॉय, तो क्या कर रहे थे, क्या अचीव कर लिया उन्होंने? सती बंद हो गई? नहीं हुई. 1970s तक होती रही है सती. विडोज की सिचुएशन क्या सुधार गए? नहीं. बट वर दे लॉस्ट? दे वर नॉट. तो आप इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री की बात करो, इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात करो, इंडिया में कम्युनलिज्म को कैसे रोक के हमने इस कंट्री को एक स्टेबल कंट्री बनाया, उसकी बात करो. वी वर नॉट लॉस्ट.
राइट? एंड देयर इज दिस थिंग टू स्पीच राइटिंग. स्पीच राइटिंग क्या होती है? आप बराक ओबामा की स्पीच सुनना, जस्ट यूट्यूब पे जाना एंड सर्च बराक ओबामा फेमस स्पीच. ऐसे राइटिंग के लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज स्पीच एंड ऐसे देयर इज नो डिफरेंस. दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, राइट? सो ही विल हैव अ सिंगल फ्रेज, यस वी कैन, समथिंग लाइक दैट. देन आपने मार्टिन लूथर किंग जूनियर की एक स्पीच सुननी है, आई हैव अ ड्रीम. सो व्हाट दे डू इज, ये एक फ्रेज सुनते हैं, उसको रिपीट करते हैं. आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे माई लिटिल चिल्ड्रन, they will be judged by the content of their character, not by the color of their skin. Then again, I have a dream कि देश में ऐसा होगा. I have a dream this will happen. एंड बराक ओबामा क्या करता था कि ये हमारा सपना है, हम बहुत प्रॉब्लम में हैं, इन्फ्लेशन बहुत हाई है, आज भी अमेरिका में बहुत गरीबी है, क्या हम गरीबी को दूर कर सकते हैं? यस वी कैन. प्राइम मिनिस्टर मोदी, he will also follow the same practice. So any good speech, any good piece of writing can have such an element, and in this essay you can use such an element. कि आप इकोनॉमी की एक लंबी बात शुरू कर देते हो, क्योंकि शब्द भी तो खत्म करने हैं, एंड एंड में यू आस्क द क्वेश्चन, वर वी लॉस्ट? नो, वी वर वॉन्डरिंग. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे बहुत लंबी चीजें पढ़ने के लिए, nobody likes, most of the people they don't like reading long articles. आपको भी पसंद नहीं है, जैसे वैसे ही ज्यादातर ह्यूमैनिटी को पसंद नहीं है, एंड फोन्स आने के बाद बिल्कुल ही पसंद नहीं रहा है. तो आपका ऐसे बोरिंग नहीं होना चाहिए, उसमें जो भी ऐसे क्रिएटिव एलिमेंट्स, अच्छी स्टोरीज, पर्सपेक्टिव्स चेंज होते रहे, उस बंदे को नए नए आइडियाज पढ़ने को मिलते रहे. एंड देयर इज सम एलिमेंट लाइक कि एक स्पीच चल रही है, उसको सुनने में मजा आ रहा है. हाँ, डेरेक ओब्रेन डिलीवर्स ग्रेट स्पीच. महुआ मोइत्रा, मेंबर पार्लियामेंट्स भी एक दो बहुत अच्छा बोलते हैं, राइट? ठीक है जी. सो आई होप यू आर गेटिंग सम आइडिया. एक चिंगारी लगाना मेरा काम है, उसके बाद आप ऐसे लिखोगे, उसको पढ़ेंगे. गुड और बैड डजंट मैटर, स्टार्टिंग में बैड ही लिखोगे. हाउ कैन यू राइट गुड एसेज? आई डोंट हैव दैट एक्सपेक्टेशन एट दिस स्टेज ऑफ प्रिपरेशन, राइट? सारे सिलेबस खत्म करते करते इतनी न्यूज़पेपर्स पढ़ लेते हो, बुक्स पढ़ लेते हो, कहानियां जान लेते हो, फिर अच्छा लिखते हो. इंस्पिरेशन फॉर क्रिएटिविटी स्प्रिंग्स फ्रॉम द एफर्ट टू लुक फॉर मैजिकल इन द मंडेन. हाँ जी. नाउ सी, my personal, as I've told you that this seems very easy to me, this seems very easy to me, I am not a very philosophical thinker, right? So first and fourth essay, if I was writing this paper, I would not have touched these, because what happens is, आप 500 words लिख लोगे, उसके बाद dead end आ जाएगा, lack of ideas हो जाएंगे. At least for me, if you are creative, you can try that. And when there is a dead end and lack of ideas, we drag essays. वो नहीं करना है, वो तो बिल्कुल ही नहीं करना. That is the worst thing. कि मुझे डिफरेंट दिखना था, नहीं, सेम लिख दो, आपके हाईएस्ट मार्क्स आ सकते हैं, राइट? कंट्री में हाईएस्ट मार्क्स आ सकते हैं, लेकिन अच्छा लिखो. Is it fine? So if you can think of something on inspiration for creativity, so इसको मैं simplify जरूर कर देता हूं कि कुछ boring, mundane is very boring, right? Very simple daily life से जुड़ा हुआ. अब what comes to my mind for this essay is some painters, some writers like Manto. मंटो एक राइटर थे, वो डेली लाइफ की कहानियां लिखा करते थे, like writing stories in which the characters are prostitutes. उसके लिए उनके खिलाफ केसेस भी चले, and he said, you are doing this, I am just writing about this. अगर इतना ही बुरा है तो उसको बंद कर दो. लेकिन उन्होंने क्रिएटिविटी कहां ढूंढी? इन वेरी सिंपल डेली लाइफ स्टोरीज ऑफ इंडियंस. एक कार्टूनिस्ट थे, आर के नारायणन. he used to make cartoons of very simple poor Indians, right? मालगुडी डेज के बारे में आपने शायद सुना होगा. अगेन स्टोरी ऑफ वेरी कॉमन इंडियंस. सो दीज वर द पीपल जिन्होंने कुछ क्रिएटिव ढूंढ लिया, right? Making your daily regime enjoyable and not mundane.
यस, बिल्कुल सही है, दैट इज ऑल्सो गुड। अब इस चीज को जस्टिफाई कैसे अच्छे से करते हो आप, वो डिपेंड करता है। बेसिक आइडिया इज वेरी गुड। आप जब ऐसे को स्ट्रक्चर करोगे इन द बिगिनिंग, उसमें आप लिख सकते हो इसमें, लेकिन यू विल हैव टू स्ट्रक्चर वेरी माइन्यूटली कि इंट्रोडक्शन कैसे होगी, देन व्हाट विल बी द सेकंड एरिया, थर्ड एरिया, देन दीज आर माय रैंडम आइडियाज, इनका फ्लो हम लिखते हुए डिसाइड कर लेंगे। एंड कंक्लूजन तो मेरा बहुत ही अच्छा माइंड ब्लोइंग होना चाहिए, बिकॉज आफ्टर रीडिंग द कंक्लूजन द पर्सन इज गोइंग टू गिव मी द मार्क्स, राइट, won't be able to go for more, so that is the problem। अब बहुत रेयर लोग होते हैं जिनका फिलोसॉफिकल माइंडसेट होता है। फिलोसॉफी, फलसफा कौन डिस्कस करता है, राइट, कि क्यों दुनिया में आए हैं हम, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ। आप सब ये घर में बैठ के मेरे ख्याल से ज्यादातर आप नहीं सोचते रहते होगे that why are there different gods, ये सब चीजें वी डोंट थिंक, वी आर वेरी मटीरियलिस्टिक पीपल दीज डेज, तो हमारी लाइफ उसके अराउंड नहीं जाती है। तो आई डोंट थिंक वो ऐसे ही, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, एज सिंपल एज दैट। मैथमेटिक्स इज द म्यूजिक ऑफ रीजन। एनीबडी हु क्लेम्स वो सभी एसेज उनमें एक्सपर्टीज हासिल करता है, दैट इज नॉट इवन पॉसिबल, राइट। सो मैथमेटिक्स इज द म्यूजिक ऑफ रीजन। नाउ इज दिस, ये क्या ये मैथ्स के ऊपर ऐसे है? I can see that they are probably talking about logic, reason, rationality in the subject of maths. Now, how do you put that into real life examples? That's very difficult. And obviously, this is the best essay, at least for me or any of you, because society में आप बहुत discuss करते हो ये. So, girls are weighed down by restrictions, boys with demands. ये बाहर नहीं जाना, नौकरी नहीं करनी, ये नौकरी लड़कियों के लिए अच्छी नहीं होती है, जो आपके इन लॉज बोल रहे हैं उसको चुपचाप मान लो, खाना बनाना सीख लो, राइट, और पानी भर के लेके आना, दीज काइंड ऑफ ट्रेजरी, ये सब कुछ, दीज आर द रिस्ट्रिक्शंस। एंड मेन, पैसा कमाना कब शुरू करोगे, राइट, क्या कर रहे हो, यू आर वेस्टिंग योर लाइफ, यू आर 25 स्टिल हैविंग नो जॉब, राइट। अब दोनों इक्वली ही उतने ही बुरे हैं, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज दोनों से मेंटल हेल्थ की धज्जियां उड़ जाते हैं। एंड इन केस यू आर ए ह्यूमन बीइंग जो ट्राई करता है कुछ डिफरेंट करने का, देन व्हाट द सोसाइटी इज स्क्रीमिंग, आई वुड से, एक्सपेक्टिंग फ्रॉम एवरी मैन एंड वुमेन कि आपको क्या करना है। आपको एक ट्रेजेक्टरी है जो सोसाइटी ने डिसाइड कर रखी है हम सबके लिए, कि आपको, इफ यू आर अ मैन, तो आप 17, 18, 19 साल तक, अगर एवरेज इंडिया की बात करें, अपनी पढ़ाई पूरी करो, उसके बाद नौकरी लो, उसके बाद शादी करो, अपने बीवी बच्चों को अच्छे से पालो, उनकी अच्छी शिक्षा करो, एंड फिर मर जाओ। Isn't that? And for women, again, the trajectory, So इसके बारे में तो you can write so many things. And you should be writing that every human being is different. Every human story is different. There cannot be comparison between two stories. There are so many examples of people जो 50s और 60s में जाके पहला सक्सेस हासिल करते हैं, लेकिन ऐसा हासिल करते हैं कि वो सारी दुनिया में फेमस हो गए। अब्राहम लिंकन सभी इलेक्शंस हार गए थे, एक ही जीते हैं, कौन सा? प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उससे पहले लोकल इलेक्शन से लेकर स्टेट इलेक्शन से लेकर एवरी इलेक्शन 90% ऑफ द इलेक्शंस ही लॉस्ट, ही नेवर वन। बट वो बंदा देखो कितना ढीठ है, वो नीचे इलेक्शन हारता है, वो कहता है कि शायद आई एम मेड फॉर बेटर थिंग्स, तो ऊपर लड़ लेता हूं। ही इज नॉट सेइंग कि ये नहीं बना तो वो क्या करूंगा, नो सच माइंडसेट, राइट। सो ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स आप दे सकते हो, एंड ये करने से बहुत सारे इन द ऐसे राइटिंग स्टाइल, बहुत सारी कल्पना चावलास एंड सच एग्जांपल्स यू कैन गिव, बहुत सारी सुषमा स्वराज, इंदिरा गांधी, शायद वो कभी पता ही नहीं लगी दुनिया को कि वो भी थी, बिकॉज ऑफ दीज एक्सपेक्टेशंस कि ऐसे आपको एक तरीके से बिहेव करना है। एंड देन इफ रतन टाटा, उनके ऊपर ऐसी एक्सपेक्टेशंस होती कि भाई क्या कर रहे हो, पैसा कब कमाओगे, शादी क्यों नहीं कर रहे, ऑल दीज आर डिमांड्स, व्हाई नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर वाइफ, राइट, वाई शुड ही, so he's having no wife. If you don't know, that is the context of my story. So
तो शायद रतन टाटा ना होते. He was given the freedom to live his life in his own way, on his own terms and conditions. Right? So that is the basic gist of this idea. अब इसमें तो आप सोसाइटी में इतने आर्टिकल्स डिस्कस करते हो. You can write so much on restrictions. What kind of restrictions? उसके कुछ consequences, like कुछ facts भी दे सकते हो. Female workforce participation rate in the country, because of this restriction this is happening. उसके consequences की बात कर सकते हो कि GDP में बड़ा एक loss होता है, because around 50% of our workforce, it is either not working, and if working they are not getting paid well. These expectations they drain students equally. बिल्कुल सही बात है. अब वो आप देख रहे हो IITs के अंदर इतने सुसाइड हो रहे हैं. अब जो बच्चा IIT क्रैक कर गया है वो काबिल है, लेकिन अगेन एक्सपेक्टेशंस, और वो IIT के हॉस्टल्स में सुसाइड्स हो रहे हैं. राइट? जस्ट प्रोटेक्ट योर कोकून टू बी ग्रेट, अदरवाइज दे विल ब्रिंग यू डाउन टू नथिंग. राइट? ऐसे कोट्स, बड़ी बातें करनी है हमने. असल लाइफ में भी ऐसे ही करना चाहिए. यू शुड नॉट लिसन टू द सोसाइटी एट ऑल, स्पेशली इंडियन सोसाइटी, इंडियन मिडिल क्लास पेरेंट्स. Apologies to the parents if they are listening, but still don't listen to them. Right? So, and be very clear about that. So, ये ऐसे आप लिखने की कोशिश करना. इनफैक्ट जो भी आपकी चॉइस है. Then this is not my cup of tea. I'll not even try it. A society that has more justice is a society that needs less charity. Again, a lot to write on this. So why do we need NGOs working in healthcare sector? क्यों चाहिए NGO? PGI चंडीगढ़ जैसे बड़े हॉस्पिटल, एम्स दिल्ली जैसे बड़े हॉस्पिटल्स के बाहर लोग लंगर लगा के क्यों खड़े हों? Why can't the state feed their citizens? क्यों नहीं खिला रहे खाना? And why do we need NGOs to pay for somebody's education, for somebody's healthcare needs? Why do we need, philanthropists जो इतना दान करेंगे, मुफ्त के अस्पताल बनाएंगे, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स? What is the government doing? And when the government is not fulfilling its responsibility, that is injustice. So a society that will have more justice, rule of law, when the principles of welfare state will be established in the truest sense, that society will not need charity, and societies should not need charity. जिस दिन सभी NGOs बंद हो जाएं, उनको लगे कि जरूरत नहीं है पेड़ लगाने की, एजुकेशन का पैसा देने की, इलाज करवाने की, बंधुआ मजदूरों को छुड़वाने की, चाइल्ड लेबर को बचाने की, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट हो रही लड़कियों को फ्री करवाने की. And when all these things are happening, a form of charity only, people are either contributing with their money, resources, time, efforts. It is charity. तो जब जिस दिन देश को जरूरत नहीं रहेगी या दुनिया को या समाज को जरूरत नहीं रहेगी ऐसी चैरिटी की, उस दिन सोसाइटी के अंदर जस्टिस होगी. Right? That is the basic idea. अब इसके अराउंड यू कैन वीव अ होल स्टोरी. अभी न्यूज़पेपर भी डिस्कस करना है. Alright, education is what remains after one has forgotten what one has learned in school. So there is this idea, I don't know what kind of content you read and consume. जो मैंने पढ़ा और सुना है उसके हिसाब से I know that school system, I believe, no तो facts के लिए बोल सकते हैं, school system is the biggest fraud that is being played on everybody in the world. It's true for America, it is true for Europe, it is true for India. राइट? स्कूल में आपको इतनी गलत चीजें सिखा दी जाती हैं. यू विल नेवर बी टॉट हाउ टू मैनेज योर पर्सनल फाइनेंस. तो शायद अगर सिखा दिया गया होता, आपकी 15,000 सैलरी होती लेकिन आपके पास पैसे होते, यू वुड नॉट हैव बीन पुअर. बैंक अकाउंट्स खुलवाने तक सिखाए नहीं जाते फॉर इंस्टेंस. एंड यू नीड फूड, यू विल अफोर्ड फूड विद मनी. व्हाट वर यू टॉट इन द स्कूल कि अच्छी नौकरी लो, अच्छी नौकरी लो. दैट्स इट. राइट? तो रियल लाइफ चीजें नहीं सिखाई जाती हैं, मॉरल वैल्यूज नहीं सिखाए जाते हैं. अगर सिखाए जाते होते तो इतने साल एजुकेशन लेने के बाद जो निकल रहे हैं बच्चे, क्या वो एथिकली बहुत अपराइट होते हैं? आर दे गुड ह्यूमन बीइंग्स? कैन वी से दैट? सो ऑन एथिकल पैरामीटर, फाइनेंशियल पैरामीटर, स्पिरिचुअल पैरामीटर, फिजिकल वेलबीइंग, ना ही वो बच्चे फिजिकली फिट निकलते हैं. अगर स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट होती
फिजिकल फिटनेस इंपॉर्टेंट होती, विच इज प्रॉब्ली द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेल्थ that is needed. If you are a millionaire, आपके पास करोड़ों रुपए हैं, but you are not healthy, what will you do with that करोड़ों रुपए? Nothing. Right? तो schools को शायद एजुकेशन को ये सिखा देना चाहिए था कि कैसे स्पिरिचुअली अच्छे रहना है, आपका पीस ऑफ माइंड बना रहता, मेंटल हेल्थ इश्यूज ना होते, फिजिकली फिट रहना है, फाइनेंशियली हेल्दी रहना है. कुछ नहीं सिखाया गया. क्या सिखा दिया गया? Right? Some things that you don't even remember. Because you were forcing yourself, or your parents were forcing yourself, or the teachers were forcing yourself, or the peer pressure, all this was forcing you people to, study and write some things in the examination, get good grades, and move on. More emphasis on marks, right? जो मैटर नहीं करते हैं. If you are still in education, nobody cares about your marks. अगर आप निकल चुके हो, 5 साल हो गए एजुकेशन को, नाउ यू आर वंडरिंग कि 12th में इतने मार्क्स लेने क्यों थे? व्हाट हैव आई डन विद दोस मार्क्स? मेनी पीपल लाइक गौतम अदानी, उनकी कौन सी एजुकेशन हुई है? सेल्फ लर्निंग, सेल्फ एजुकेशन, दैट इज द बेस्ट एजुकेशन. जो हम बोलते हैं स्ट्रीट स्मार्ट पीपल, राइट? सो यू कैन ब्रिंग इन अनदर पर्सपेक्टिव अबाउट बीइंग स्ट्रीट स्मार्ट. रियल लाइफ की चीजें सीखनी, वो काम करती हैं एंड वो बेटर लेसन होते हैं. तो एजुकेशन क्या है? What remains after one has forgotten. तो जो भी आपने स्कूल में पढ़ा, जब सब भूल जाएगा, बचा हुआ क्या होगा? एजुकेशन. मतलब बाकी सब कुछ जो आप कर रहे थे, जो आप घर में खेल रहे थे, अपने कजिन्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपनी सोसाइटी के साथ, दैट वाज एजुकेशन. राइट? परसेंटेज, गुड मार्क्स का प्रेशर. अब 12th क्लास के बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, 11th क्लास के सुसाइड कर लेते हैं. राइट? ऐसा उनको क्या लग गया कि 11th के मार्क्स, व्हाई आर दे सो इंपॉर्टेंट? नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट. वेरी गुड मॉर्निंग जी. राइट? सो ये था यूपीएससी एसए का पेपर. इसको आप अटेम्प्ट करोगे, फिर हम डिस्कस करेंगे. राइट? इज दिस फाइन? आई होप कुछ इनसाइट्स आपको मिले होंगे. बाकी तो आपने लिखना है, तो सोच भी आप ही की होनी चाहिए. रिसर्च मत करना, पहले लिखना. लेट्स सी रॉ आइडियाज क्या निकलते हैं. रॉ आइडियाज आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ओनली देन यू विल बी एबल टू इवेल्युएट. अगर आपने मेरे भी सुन लिए हैं जो भी आइडियाज, अब वो आप पेपर पे लिखोगे, बिकॉज आपका दिमाग उस समय कुछ और सोच नहीं पाएगा, तो कुछ तो आप लिखोगे, एंड दैट विल बी जो आपने सुन लिया, पढ़ लिया. तो अभी जितना सुन लिया दैट इज फाइन. रिसर्च बाद में करना, पहले लिखना. ठीक है जी? एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट, वेरी इंपॉर्टेंट.